Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction, where you learn things in a very easy and simple way with practical examples. I'm Manoj Kumar, currently working as an assistant professor, two-time UGC NET. So in the last three lectures we have discussed about marketing management meaning, scope, marketing philosophies and marketing mix. And in today's lecture we are going to discuss about marketing environment. Okay, so here you can see the two terms. One is marketing and other one is environment. So basically, what is environment? Environment means our surrounding, which consists of two kinds, internal and external, right? And here we are discussing about two terms. One is marketing and second one is environment. So here, that how the internal and external environment is going to impact the marketing or the companies, right? So we can say the marketing environment is like the surrounding in which a company operates in internal environment and external environment. And also these factors can impact a company's success by creating opportunities or presenting the challenges. So understanding and adapting to the marketing environment is important for a company to effectively reach its target audience and whatever their goals. Maybe the goal is to maximize the profit, maybe the goal is to reach to more customer, to target more and more customer. That vary from company to company. After that, in continuation, if we talk about the definition, so according to Philip Kotler and Kevin Lane, what they said that the environment consists of your actor and forces, and basically these are related to your outside marketing, and that is going to affect your marketing management, whatever the abilities you are having to build or maintain a successful relation with your target customer. When we talk about the second definition, which is given by the Michael Porter, he said that all the factors and the events that influence your surrounding and also that affect your organization ability to achieve its marketing objectives. अब हम जब इसे आगे डिस्कस करेंगे, जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कंपनी की एबिलिटी पे, या उन्हें अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को मैच करने के लिए, रीच करने के लिए. सो इफ वी टॉक अबाउट द टेबल ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है टू टाइप्स में. वन इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके कंट्रोल में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. इफ देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ चेंज, यू कैन डू दैट. एक्सटर्नल फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स में, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें आपका क्या क्या है, जैसे मैंने कहा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, कंपनी के रिसोर्सेज है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. जब हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे, माइक्रो में हमने रखा है अपने कस्टमर्स को, कंपिटिटर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज, पब्लिक. एंड जब हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ये इस तरह के एक्टर्स या फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जो कि अगर हमारे favor में होंगी, so that is going to be beneficial for the company, for the organization. Otherwise that are going to have a negative impact on the companies. वहाँ पे आपको सर्वाइवल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. सो वो फैक्टर क्या रहेंगे? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल. ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशन है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फर्दर उसका जो भी हमने आगे क्लासिफिकेशंस एंड पॉइंट्स पढ़े, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. उससे क्या होगा, आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So talking about the internal environment means within an organization that is going to influence its marketing activities. अब इस internal environment में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमने कहा पहला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? द वैल्यूज, द बिलीव्स, norm of the organization, or what kind of practices any organization use to shape the behavior and attitude of employees within the company, right. So here we are considering example, a company may have a culture that emphasis on innovation, collaboration or customer centric.
अब हर एक कंपनी का अपना अपना कल्चर है। यहाँ पे हमने किसी भी XYZ कंपनी का एग्जांपल उठाया तो उनका मेन फोकस क्या है, उनका कल्चर क्या है कि हम we always promote the innovation, we always promote the collaboration, और हम totally जो है वो customer centric है। means whatever the goods and services we are going to provide to the customer, we want to meet the expectation of customer with our product and services। ये हो गया हमारा first point, that is the organizational culture। after that, company resources। अब कंपनी रिसोर्सेज मींस ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं कंपनी के, दैट प्रोसेस टू कैरी आउट द ऑपरेशंस। ओके, अब इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, जैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे, जैसे कि कैपिटल, बजट, इन्वेस्टमेंट। मीन्स आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपको एक कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट बजट चाहिए, लाइक प्रोडक्शन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट, आउटलेट्स के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको बजट चाहिए, सेल फोर्स के लिए अलग से बजट चाहिए, फाइनेंस के लिए अलग से चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, आपके एम्प्लॉयज, जो आपकी वर्क फोर्स है, मैनेजर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स, वो सब आ गए, एंड देयर स्किल्स। एंड देन द फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब वट एवर द फैसिलिटीज वी आर हैविंग, हमारे पास लेआउट किस तरह का है, हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कहाँ पे है, द इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे पास मशीनरी वगैरह है, टूल्स हैं, एंड द टेक्नोलॉजी, हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं, मॉडर्न यूज कर रहे हैं, दैट मे वेरी। एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ किसी कंपनी का अपना पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, राइट, ये सब चीजें आ गई हमारी कंपनी रिसोर्सेज में। आफ्टर दैट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है वो पूरा एक ओवरऑल प्लान बना रही है कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच आर कस्टमर्स, या फिर हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से मैच करेंगे, राइट। सो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, मे बी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर ट्राइंग टू ऑफर टू द कस्टमर, मे बी द टारगेट मार्केट सेगमेंट। अब कोई कंपनी होगी जो हर एक एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रही होगी। अब अगर हम बेबी सोप की बात करें, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं 0 to 4 years, 5 years, 6 year तक की रेंज को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर हम FMCG प्रोडक्ट की बात करें, देन वो लगभग लगभग हर एक एज ग्रुप को कवर कर रहा है, मोर देन 4 years से लेके जो भी आगे हमारा एज ग्रुप है उन सबको वो टारगेट कर रहा है। देन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब लेट अस सपोज वी नो दैट वी आर कमिंग विद सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हम स्मार्टफोन के साथ आ रहे हैं। सो हमारे कंपिटिटर्स ऑलरेडी सेम स्मार्टफोन जो है वो 40K में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी क्या यूज की कि वी विल ट्राइंग टू प्रोवाइड दोज फीचर विद इन द 35K। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी कि जिससे कि वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। देन द प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशनल एक्टिविटी में क्या हो गया, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से दैट, हम क्या कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री का कर रहे हैं हम, वो सब चीजें हो रही है, वो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज हो गई, दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट टू मोर एंड मोर कस्टमर्स। देन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स अब एक कंपनी है वो क्या डायरेक्ट अपने कस्टमर्स तक चीज को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रही है, तो वहां पे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो चैनल्स के थ्रू चलेंगे। मींस दे नो दैट रिटेलर्स जो है उनको लोकल मार्केट का ज़्यादा आइडिया होगा, तो उनकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच कर पाएंगे। सो दैट अगेन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आफ्टर दैट, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब नाम से क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का फॉर्मेशन है, किस तरह का उनका हायरार्की यूज होगी। एज यू कैन सी हियर दैट इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क विच इज गोइंग टू डिफाइन कि कंपनी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उनका रिपोर्टिंग लाइन क्या है, देयर डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, राइट। हायरार्कीज में अगर हम बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। पहला हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट आ गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर आता है कि किस तरह से लाइन ऑफ हमारी अथॉरिटीज़ है, रिपोर्टिंग लाइंस क्या है, वो सब चीज़ें आती हैं। आफ्टर दैट,
द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कही उसमें सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन है माइक्रो एनवायरनमेंट. सो माइक्रो एनवायरनमेंट मींस इट इज वेरी क्लोजर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ऑपरेशंस और मार्केटिंग डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि उसमें सबसे पहला फैक्टर रहेगा हमारा कस्टमर्स. तो कस्टमर्स के लिए कंपनी क्या कर रही है, या तो दे आर हैविंग देयर टारगेट मार्केट सेगमेंट्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, देयर टेस्ट, देयर नीड्स, उनका बाइंग बिहेवियर किस तरह का है, वो सब चीज़ें कंसीडर करके हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर करवा रहे हैं अपने कस्टमर तक. सो हियर वी हैव कंसीडर अगेन द एग्जांपल ऑफ एप्पल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो एप्पल व्हाट दे डू, उनका जो भी आईफोन का लाइनअप है वो क्या करते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को, उनके बाइंग बिहेवियर को कंसीडर करते हैं बाय ऑफरिंग वेरियस मॉडल एट डिफरेंट प्राइस. जैसे आपको पता है आईफोन 9, 10, 7 अब बहुत पुराने हो गया, उनका प्राइस कितना कम है, सो दैट अगर किसी को एप्पल का फोन खरीदना तब भी. देन आईफोन 11, 12, 13, 14 सबके प्राइस रेंज डिफरेंट डिफरेंट है, सो दैट एप्पल विल बी एबल टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट एंड कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी को भी मेंटेन रखेंगे. देन द सेकंड थिंग इज कंपिटिटर्स. तो कंपिटिटर्स में आज के, इफ वी टॉक अबाउट द कटथ्रोट कंपटीशन, so there are so many companies and you want to survive into the market, so you have to deliver your promises to meet the expectation of the customer. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, you have to do an analysis of your competitors कि उनकी क्या strategies चल रही हैं, राइट, उनका क्या प्राइसिंग चल रहा है, वो सब चीज़ें आप पता करोगे, या हाउ व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स यू आर हैविंग फ्रॉम योर कंपटीटर्स, वो सब चीज़ें आप कंपटीटर एनालिसिस में कर लोगे. देन द मार्केट शेयर, जो आपका कंपटीटर है उसका मार्केट शेयर आपसे ज़्यादा है या कम है, अकॉर्डिंग टू दैट. देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जैसे मैंने कहा, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनीज क्या करेंगी, स्वॉट एनालिसिस करेंगी. स्वॉट एनालिसिस में क्या होगा, वो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ थ्रेट्स दोनों के, चारों के बारे में पता करेंगे. जबकि ये जो हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो इंटरनल है, while the opportunity and threats are external, right? So यहाँ से हमें अपने competitors के बारे में और अपने आप को अच्छी पोजीशन में लाने के लिए पता लग जाएगा. Then after that strengths, weaknesses हमने हो गया, किस तरह से फिर according to that we are trying to formulate the competitive strategies. So here we have considered the example of the rivalry between Coca-Cola and PepsiCo. तो अब ये दोनों ही बीवरेज इंडस्ट्री के क्लासिकल एग्जांपल हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कंपटीशन को जो है इन्फ्लुएंस किया विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. दोनों की दोनों कंपनीज क्या करती हैं, दे इन्वेस्ट हैवी इन एडवर्टीजमेंट, उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, और जो उनकी ब्रांड पोजीशनिंग है टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर एंड अट्रैक्ट कंज्यूमर. दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट सप्लायर्स. अब सप्लायर्स की ज़रूरत क्यों है हमें, जो हमने एक प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तो वो कौन सप्लाई करेगा, हमारे सप्लायर्स रॉ मटेरियल को हमारे लेआउट, हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां तक लेके आएंगे, राइट. सो सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल, कोई हमें कंपोनेंट्स चाहिए उसके लिए हमें चाहिए, या कोई भी बहुत नेसेसरी रिसोर्सेज जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो सब हमें सप्लायर के थ्रू ही आएंगे, राइट. सो हियर वी हैव कंसीडर एग्जांपल ऑफ नाइकी which is a prominent sportswear brand. So वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं अपने वेरियस सप्लायर के साथ, so that they will be able to ensure the high quality material products, right. एंड उनकी जो रिलेशनशिप रहता है अपने सप्लायर के साथ वो बहुत ही हेल्दी है, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी है, वो रिलायबल है, और कहीं ना कहीं वो अपनी सप्लाई चेन को सस्टेनेट रखते हैं. दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केटिंग एफर्ट. अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत आपस में सप्लायर्स का और कंपनी के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को ही अफेक्ट करेगा. सो यू हैव टू ऑलवेज मेक अ गुड एंड हेल्दी रिलेशन विद योर सप्लायर्स. आफ्टर दैट द इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज मीन्स जो चैनल है आपका अपना प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, विच यू आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर. देन द होलसेलर हो सकता है या रिटेलर होगा, या कोई अदर इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो कोई एजेंट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL. दिस इज अ कंज्यूमर गुड कंपनी जो कि ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, जैसे कि अपना पर्सनल केयर हो गया, होम केयर हो गया,
फूड बिवरेजेस हो गए, राइट। सो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचता, ये किसकी हेल्प के थ्रू पहुंचता है, सबसे पहले ये जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इनसे सामान उठाएंगे, तब वो आगे होलसेलर को सामान बेचेंगे। होलसेलर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वाइज रिटेलर को वो सामान पहुंचाएगा, बिकॉज ये रिटेलर्स जो हैं दे आर मोर अवेयर अबाउट द टेस्ट प्रेफरेंस नीड एंड डिमांड ऑफ दैट लोकल मार्केट। उस लोकल एरिया के बारे में इनको ज़्यादा पता है एज कंपेयर टू द कंपनी। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह का चैनल यूज किया, सो दैट दे विल बी एबल टू रीच टू द मोर एंड द वास्ट segment market over there. After that, पब्लिक्स, पब्लिक का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं जो कि या डिफरेंट एंटिटीज हैं, दे आर हैविंग देयर इंटरेस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, वो मे बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं। तो अब वो क्या हो सकता है, मे बी वो मीडिया है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया मैकडी का। तो मैकडी क्या करता है, मैकडी एंगेज विद वेरियस पब्लिक थ्रू देयर कॉज मार्केटिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, लेट्स फॉर इंस्टेंस कि मैकडी ने किसके साथ पार्टनरशिप कर दिया, कोई रोनाल्ड मैकडी हाउस चैरिटी है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए। तो इससे क्या हो गया, बाय अलाइनिंग देयर मार्केटिंग एफर्ट्स वो कहीं ना कहीं सोशल कॉज को भी दिखा रहे हैं और दैट इज गोइंग टू एनहांस देयर ब्रांड इमेज, और कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर्स के साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होंगे, बिकॉज कस्टमर भी सोचेंगे कि अच्छा मैकडी जो है अगर हम कुछ वहां से परचेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूशन जा रहा है उन बच्चों की वेलबींग के लिए। ओके, देन द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट, जहां पे हमने बात कही हम उसको और किस तरह से समझ सकते हैं, पेस्टल। ओके, अभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, आपको लग जाएगा पता कि ये पेस्टल क्या था। सो मतलब जो भी हमारी सोसाइटल फोर्सेस हैं जो कि बियॉन्ड चले जाते हैं कंट्रोल के ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या हो सकता है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, एस स्टैंड फॉर सोशियो कल्चर, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल एंड एल स्टैंड्स फॉर लीगल फोर्सेस। तो इन शॉर्ट आप किस तरह से इसे समझ सकते हो कि पेस्टल से आप इसे याद रख सकते हो कि मैक्रो एनवायरनमेंट पूछा, वहां पे जब आपको डायग्राम में बनाना तो पेस्टल याद रखो और उसको वैसे ड्रॉ कर दो। सो पहला जो फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, मींस ऑर्गेनाइजेशन को जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो किस तरह से अफेक्ट करने वाली हैं। तो उसमें क्या क्या आ सकता है आपका, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकती हैं कुछ स्टेबिलिटी के लिए, मे बी ट्रेड पॉलिसीज आ गई उनकी, मे बी जो पॉलिटिकल ट्रेंड है वो चेंज हो गया। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर किया है जीएसटी, जो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने वो जीएसटी क्यों लेके आए, टू स्ट्रीमलाइन द टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ से क्या हो गया कि जो भी इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे, अब उनको क्या करना पड़ा, अपनी प्राइसिंग और अपनी सप्लाई चेन प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ा, सो दैट जो हमारा न्यू टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो उसके साथ कंप्लाई कर सकें। वो अपना प्रॉफिट उस तरह से शो करना चाहते थे सो दैट एक्स्ट्रा टैक्स भी ना जाए उसमें, राइट। देन द सेकंड फोर्स इज योर इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक फोर्सेस। तो ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी, कोई कंडीशंस ऐसी रही हैं, मे बी जीडीपी ग्रोथ के रिगार्डिंग कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रह रहा है, एकदम से इन्फ्लेशन हो गया उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सचेंज रेट्स हाई हो गए उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या सडनली हमारा कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कि अगर हम 1980 का इकोनॉमिक रिसेशन को कंसीडर करते हैं तो क्या हुआ उससे, जो कंज्यूमर थे वो किस तरफ टेंड हो गए कि मोर प्राइस सेंसिटिव, और उनका फोकस क्या था, सिर्फ एसेंशियल परचेजेस पे, जो जरूरी चीजें थी वही खरीदेंगे, इतना पैसा था नहीं कि एक्स्ट्रा खर्चे। तो उससे कंपनी कहाँ पे प्रॉम्प्ट होगी कि उनको जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी वो प्रॉम्प्ट करनी पड़ी बाय ऑफरिंग क्या चीजें, वो डिस्काउंट देने लगे, प्रमोशन देने लगे, वो वैल्यू बेस्ड मैसेज लगे प्रोवाइड करने, so that they will be able to attract more and more customer. Okay, after that the socio cultural factor, नाम से चीजें, दो चीजें यहाँ पे, सोसाइटी और उनके कल्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट बिलीव्स होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे, वो चीजें भी कंपनी को ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि कल्चर नॉर्म हो गया, demographics according to the age, according to the gender, according to the income level, according to the occupation level, social values हैं, then lifestyle trends हैं,
उन सब चीज़ों को ध्यान रखने ही आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है. सो हियर वी हैव कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कंपनी लाइक पतंजलि एंड अमूल. अब सडनली क्या हो गया कि लोग एकदम से बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए. दे आर ट्राइंग टू प्रेफर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट. सो जो कंपनीज थी पतंजलि और अमूल, उन्होंने क्या किया, वो दे आर कैपिटलाइजिंग देयर ट्रेंड. वो क्या बता रहे हैं कि हम बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स लेके आ रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को केटर करेगा, राइट. सो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से उनके वैल्यूज को, उनके बिलीव्स को, उनके जो पैटर्न में चेंज हुआ बाइंग का, उसको उन्होंने किस तरह से एकदम से ग्रैब कर लिया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. अब क्या है, सपोज यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज 10 years old and still you are using that in your company, and the current demand is that you have to change your style with the present scenario. वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए. तो आपको किस तरह से आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, राइट. सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इनोवेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, राइट. या फिर जो इम्पैक्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ऑन मार्केटिंग एंड इंडस्ट्री. सो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया वो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन का. अब ये किस तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को जस्टिफाई कर रहा है. सडनली आपको एकदम से ही 2008 10 12 के बाद, 8 में तो नॉर्मल फ़ोन आए, उसके बाद 10 12 के बाद जो क्या हुआ, सडनली जो स्मार्टफोन आने लगे, सो उससे लोगों के पास जो मोबाइल कॉमर्स पे भी ज़्यादा ध्यान देने लगे. तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने क्या किया, इन्होंने मोबाइल ऐप्स, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स बना दी, सो दैट दे विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट्स फॉर द मोबाइल डिवाइसेस. अब जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो 24 घंटे अपना पीसी तो इधर उधर लेके जा नहीं सकते थे, राइट. सो उन्होंने क्या किया, अपनी ऐप्स ही उस तरह से बना दी कि आप उनको यूज करो और दे विल बी एबल टू एंगेज, दे विल बी एबल टू रीच मोर एंड मोर कस्टमर थ्रू द डिजिटल चैनल. इस तरह से इन्होंने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का यूज किया और वो इनके बेनिफिट में हो गया. आफ्टर दैट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी किस तरह से सस्टेनेबिलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है. क्लाइमेट चेंज पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हो तो कुछ वहाँ पे गैसेस वगैरह तो नहीं आ रही हैं जो क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. या जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की. अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें, लाइक जो पहले हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स आती थी वो ग्लास की थी, देन सडनली जैसे जैसे ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर फोकस होने लगा तो वो पेपर, कार्डबोर्ड की पेपर पैकिंग में आने लग गया, राइट. और यहाँ पे हमने जो मेन एग्जांपल कंसीडर किया वो है टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा का ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का. तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब वो टोटली किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि डिमांड ग्रो करेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, और हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज़ में. ओके. आफ्टर दैट द लास्ट वन इज लीगल फैक्टर. लीगल मतलब लॉ हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस हो सकती है जो रिक्वायरमेंट्स है किसी भी कंपनी को. यहाँ पे हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है वो है यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR. अब सडनली क्या हुआ कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की, तो जैसे कि ये था GDPR, तो इससे क्या हुआ कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी वो वर्ल्ड वाइड ही अफेक्ट हो गई. कंपनीज को क्या करना पड़ा, दे हैव टू रिव्यू देयर डाटा कलेक्शन, और जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज थी वो सब उनको चेंज करनी पड़ी, सो दैट दे विल बी मेकिंग दोज एंश्योर थिंग्स कि हम जो है कंप्लायंस कर सकें और वी विल बी एबल टू रिगेन द कस्टमर ट्रस्ट. तो जैसे ही कोई भी लॉ में अमेंडमेंट हुई, कोई नई रेगुलेशंस आई, तो कंपनीज को भी अपने आप को उस तरह से चेंज करना पड़ता है. ओके. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक विच इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमने इंटरनल, एक्सटर्नल एंड फर्दर एक्सटर्नल की माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट हमने पढ़ा. Okay, so I hope that this video will be able to clear your doubts, and if you are new to the channel then do subscribe my channel. Otherwise, like my videos, share my videos with your friend, your classmate, batchmate, so that they will also get benefited with these videos. If you are new to the channel then please subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel but still you have not pressed that bell icon, तो इसको दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक एकदम से पहुंच जाए. So with this I am going to wrap up the today's lecture. Thank you so much.
Bye bye. God bless you. See you in the next video.